Hello student, good morning. So in mechanics we have successfully completed unit third, that is movement, and till time we have seen introductory part, law of forces and movement. So now we will move our next unit which is friction. हमारी जो फोर्थ यूनिट है वो है फ्रिक्शन. So we will see how friction works basically in daily life as well as how the problems on friction and how in practical life in our daily life friction helps us. So if we talk about topics in that particular unit which is friction, the topic that is mentioned in your syllabus is definition and concept of friction, types of friction and force of friction. So that means we have to discuss brief introduction about friction and its classification and which kind of forces involved in friction. After that, next topic is law of static friction. That means if we classified friction, we will find two types of friction, statics and dynamics. So what kind of law is used if body in rest position and we consider friction? That law we have to discuss. After that, coefficient of friction. What is coefficient of friction? Angle of repose, angle of friction and cone of friction. Next topic is equilibrium of a body lying on a horizontal plane. If a body lying on a horizontal plane, then how we will consider equilibrium at that particular body. And after that, equilibrium of a body lying on a rough inclined plane. So we have to see some examples as well as we have to study body lying on a horizontal plane and body lying on a inclined rough plane. That means how body slips on any inclined plane. We have to study about that. Next topic, calculation of a least force required to maintain equilibrium of a body. What is minimum force that we must have to maintain the equilibrium of a body on any rough inclined plane subjected to following forces. There are two circumstances. First one, acting along the inclined plane horizontally. That means the force, if the force is acting along the inclined plane, and the next condition is at some angle with inclined plane. While the force is at any particular angle on inclined plane, also we have to consider that particular case. So this is all about your topics that we have to discuss in our this chapter. This is friction. So now we'll move to topic wise discussion. Just we have to start. We will start from introductory part, that is what is friction. So सबसे पहले हमें ये देखना है कि फ्रिक्शन होता क्या है, क्या मतलब कैसे हम समझते हैं क्यों होता है किसी सरफेस पे किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के अगेंस्ट, क्यों सरफेसेस जो है एक दूसरे के अलोंग जब मूव करती हैं या अगेंस्ट जब रब करती हैं तो वहां पे क्यों फ्रिक्शन जनरेट होता है, क्यों एक तरीके का फोर्स जो है मूवमेंट के अगेंस्ट कोई सरफेस दूसरे सरफेस से लगाती है, ये हम देखते हैं. तो अगर हम बात करें, हमारे पास मान लीजिए दो सरफेसेस हैं, कोई भी सरफेस है. अब जब हम
जैसा कि हमने पहले भी फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़ा था कि हम किसी बॉडी को दूसरे सरफेस पे या किसी बॉडी पे रखते हैं तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे क्या करती है, रिएक्शन फोर्स लगाती है। कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे बॉडी रखेंगे तो दैट मीन्स कि उसका जो है वेट होगा, है ना। तो वेट की वजह से क्या होगा, जिस प्लेन पे हम रखेंगे या जिस बॉडी पे हम बॉडी को रखेंगे या कोई फोर्स किसी पर्टिकुलर प्लेन पे इंप्लीमेंट करेंगे तो उस फोर्स की वजह से बॉडी भी एक रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। तो सेम प्रोसेस में अगर मान लीजिए दो स्लिपरी सरफेसेस हैं, दैट मीन्स कि दो क्लीन सरफेस हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर दो सरफेसेस को अगेंस्ट दो सरफेसेस पे हम दोनों को इन कांटेक्ट रखते हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करेंगी, एक रिएक्शन फोर्स जनरेट करेंगी। मान लीजिए कोई एक है सरफेस, एक बॉडी है किसी सरफेस पे रखी हुई है, तो जो बॉडी का आपके वेट होगा वो सरफेस पे इंप्लीमेंट होगा, अप्लाई होगा। तो उस वेट के अगेंस्ट में बॉडी क्या करेगी, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। अब ये उस कंडीशन में होगा जब दोनों प्लेन क्या है, दोनों प्लेन रफ नहीं है, दैट मीन्स कि दोनों प्लेन आपके फ्लैट है। फ्लैट मतलब कि चिकना है। उस कंडीशन में क्या होगा कि एक जो सरफेस है दूसरे किसी पर्टिकुलर फोर्स के अगेंस्ट में तो जो फिनिश सरफेस होगी दूसरे के अगेंस्ट में जो रिएक्शन फोर्स लगाएगी वो उस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर हमारी सरफेस ही क्या टोटली क्या नाम है, फ्लैट नहीं है, टोटली फिनिश नहीं है, रफ सरफेस है, तो उस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें रफनेस की या फिनिश सरफेस की, तो हम मान तो लेते हैं कि कोई सरफेस हमारी कंप्लीटली क्या है, फिनिश्ड है। हमारे पास कोई भी आपके घर में बहुत सी एग्जांपल्स होंगे, मेज होगी, कोई तखत होगा या उसको छोड़िए आपकी फर्श होगी, ठीक है। तो ये सब आपको लगता है क्योंकि आप टच करते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि इस सरफेस में रफनेस है, ठीक है। यहाँ पे कैविटी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपकी क्रेस्ट है, वैलीज है, ये आपको कुछ नहीं पता चलता है जब आप ओपन आई से ऑब्जर्व करते हो, आपको रफनेस नहीं पता चलती टच करके, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई सरफेस परफेक्टली जो है फिनिश्ड रहे, तो ऐसी कोई सरफेस एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि ईच एंड एवरी सरफेस जो होती है कहीं ना कहीं उसमें माइनर लेवल की ही रफनेस होगी, लेकिन रफनेस होगी, दैट मीन्स कि वो परफेक्टली जो है फिनिश नहीं होगी। अगर आप किसी भी सरफेस को माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे उसमें क्या होगा कि आपको सरफेस पे छोटे बड़े जो है गड्ढे और आपको उभार, तो उन गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। जब हम बात करते हैं सरफेस स्टडी की तो वहां पे जो आपके छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, तो उन गड्ढों को हम क्या बोलेंगे, वैलीज बोलेंगे। और जो उभार होते हैं छोटे छोटे उनको हम बोलते हैं पीक्स। तो आपको जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उस सरफेस की स्टडी करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पे सरफेस में छोटे छोटे गड्ढे हैं, छोटे छोटे उभार हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो हम सरफेस को कंप्लीटली फिनिश्ड मान रहे थे वो सरफेस कंप्लीटली फिनिश्ड नहीं है। फिर ऐसे केस में क्या होता है, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के अलाउंग जो है एक दूसरे के अगेंस्ट कांटेक्ट में आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी केस में क्या होता है कि ये जो आपके पीक्स होते हैं, वैलीज होती हैं, ये एक दूसरे में क्या होते हैं, एक दूसरे से लॉक हो जाते हैं। लॉक होने का मतलब कि एक दूसरे में जाके एडजस्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और इससे क्या होता है,
आपका एक तरीके से ये जो लॉक हो जाते हैं उसकी वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे कि अगर हम बात करें यहीं पे देखिए आप, जो आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, ये सरफेस एक ऊपर एक सरफेस थी, नीचे एक सरफेस थी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में इन सरफेसेस को रखा गया। उसके बाद जैसे ही हमने कोई फोर्स लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्रेस्ट होगा या जो आपका पीक्स होगा वो नीचे वाले सरफेस के वैली में जाके शिफ्ट हो जाएगा, और जो नीचे वाले सरफेस का पीक होगा वो ऊपर वाले के वैली में जाके शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये सरफेसेस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में जाके चिपक सी जाएंगी और लॉक हो जाएंगी। फिर ऐसे केस में क्या होगा कि क्योंकि जो इरेगुलरिटीज होती है इनका कोई पैटर्न नहीं होता है। पैटर्न की बात करें तो मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने डिस्टेंस के बाद ये वाली इरेगुलरिटीज होगी, ठीक है। तो इन इरेगुलरिटीज पे जो लगने वाले रिएक्शन फोर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कोई फोर्स F2 की डायरेक्शन में लग गई, कोई F1, कोई F3, कोई F4, ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये फोर्सेस क्या करती हैं कि ये जो दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं इनके मूवमेंट को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं, इनके मूवमेंट्स को अपोज करती हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि जो हमारी अपर बॉडी है उस पर हम फोर्स P लगा रहे हैं, तो इन सरफेसेस के लॉक होने की वजह से जो ये डिफरेंट फोर्सेस हैं इनका एक सम फोर्स यानी इनका एक रिजल्टेंट फोर्स इस P की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में F मैग्नीट्यूड का इंप्लीमेंट हो जाएगा। यही जो फोर्स होता है, यही जो अपोजिंग फोर्स होता है जो कि P जो इन कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में मूवमेंट कराने का प्रयास कर रहा है, ये अपोजिंग फोर्स उस P फोर्स का क्या करता है, अपोज करता है। मतलब कि वो मूवमेंट को रोकता है होने से, इन सरफेसेस को अनलॉक होने से रोकता है। तो ये जो आपका F फोर्स होता है जो कि समेशन ऑफ रिएक्शन फोर्सेस ड्यूरिंग लॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, ये उन समेशन रिएक्शन फोर्स का समेशन या आप यूं कह लीजिए कि उनका रिजल्टेंट होता है जो कि इस फोर्स का विरोध करता है। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल बोलते हैं। और जो लगने वाला फोर्स होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं, ठीक है। जो आपके सरफेसेस के म्यूचुअल मूवमेंट का क्या करती है, अपोज करती है, विरोध करती है, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, तो जो नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स किसी सरफेस के अगेंस्ट जो रिएक्शन जनरेट होती है, ठीक है, वो रिएक्शन इनटू म्यू, म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। वो सरफेस की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके की सरफेस है उसी तरीके से फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग अलग टाइप का होता है अलग अलग प्रकार के सरफेसेस के लिए। तो फ्रिक्शन फोर्स की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट को रिएक्शन फोर्स की वजह के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक कोई बॉडी है जिसका वेट W है, ये एक नीचे सरफेस है, उसके अगेंस्ट पे ये बॉडी प्लेस है। अब देखिए इस बॉडी पे बॉडी का वेट W है, W नीचे की तरफ का कार्य करेगा। तो अगर हम बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पे क्या होगा, वेट तो W नीचे की तरफ कार्य करेगा, इसके अलावा ये जो नीचे वाली सरफेस है इस पे एक वेट की वजह से रिएक्शन फोर्स लगाएगी, वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस वेट पे होगा और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स कि ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन देखिए बराबर होगा। तो अगर हम बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स की, मतलब कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक ऑन दिस सरफेस विच इज P। तो अगर हम बात करेंगे P की,
तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर के बराबर होगा, ठीक है। सॉरी, तो फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात करें एफ की, तो म्यू इंटू आर के बराबर होगा। ये एफ क्या होगा, इस जो आपका एफर्ट है इसके अगेंस्ट कार्य करेगा। अब अगर देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू हमें पता है भाई, रिएक्शन जितना इस पे लग रहा है इसका एक निश्चित अमाउंट होगा रिएक्शन का, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है क्योंकि ये बॉडी वेट के अगेंस्ट लग रहा है। तो रिएक्शन की वैल्यू पता है और इस पर्टिकुलर सर्फेस के लिए हमें म्यू की भी वैल्यू फिक्स है। दैट मीन्स कि ये वैल्यू जो एफ है हमारी वो फिक्स है। अब अगर जो एफर्ट लगा रहे हैं इस वैल्यू एफ से अधिक होगा तब तो हमारा ब्लॉक मूव करेगा। अगर ये जो एफर्ट है हमारा पी वो एफ से कम होगा तो हमारा ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और हमारा ब्लॉक क्या हो जाएगा, इस सरफेस के अगेंस्ट में मूव नहीं कर पाएगा। तो ये रहा आपका डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। अगर बात करिए, देखिए ऐसा नहीं है कि हर जगह हमारा फ्रिक्शन अपोज ही करता है, फ्रिक्शन कहीं कहीं जो है मतलब कि हेल्प भी करता है किसी बॉडी के बैलेंस करने में, वो हम देखेंगे अभी आगे बहुत से एग्जांपल्स में, ठीक है, कि कहाँ पे हमारा फ्रिक्शन जो है मोशन में बॉडी के बैलेंसिंग में हेल्प भी करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, क्या फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा, अगर हम लुब्रिकेशन मतलब कि जो सरफेसेस हैं उनके बीच में किस तरीके का लुब्रिकेशन है उसके बेस पे डिवाइड करें तो दो तरीके से आपको क्या नाम है फ्रिक्शन आप क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, लुब्रिकेटेड सरफेसेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन। तो अगर बात करें घर्षण के जो सतहें हैं जिसपे जो पर्सन मतलब कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उन सरफेसेस को अगर उनके बीच में कोई लुब्रिकेंट है तो इस टाइप का जो फ्रिक्शन होगा सरफेसेस के बीच में जिनके बीच में लुब्रिकेंट होगा, तो इस टाइप के फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लुब्रिकेटेड या स्नेहित सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर उनके बीच में कोई लुब्रिकेशन नहीं है, दैट मीन्स कि जो सरफेस हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, तो इस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे अनलुब्रिकेटेड या अस्नेहित फ्रिक्शन। अब अगर बात करें लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन की, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं विस्कस फ्रिक्शन। अब अगर बात करें विस्कोसिटी की, तो आप लोगों ने फिजिक्स में ऑलरेडी जो है विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो जहां पे विस्कस फोर्स जनरेट होती है ऐसे फ्रिक्शन को विस्कस फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब कि जहां पे आपका सरफेसेस के बीच में विस्कोसिटी अधिक होगी, यानी कि लुब्रिकेशन क्या होगा, अधिक होगा। अगर बात करें दूसरा नॉन विस्कस या बाउंड्री फ्रिक्शन, तो नॉन विस्कस के केस में क्या होगा कि जो सरफेस के बीच में लुब्रिकेशन होगा वो कम होगा, या यूं कह लीजिए कि जो लुब्रिकेशन फिल्म होगी वो काफी पतली होगी नॉन विस्कस के केस में। व्हाइल इफ वी कंसीडर विस्कोसिटी बिटवीन द सरफेसेस व्हिच इज इन कांटेक्ट, तो उस केस में क्या होगा कि जो फिल्म होगी, लुब्रिकेशन फिल्म होगी, वो क्या होगी, मोटी होगी रेदर देन नॉन विस्कस फ्रिक्शन। अब आइए देखते हैं पहला कि लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन के अंतर्गत जिनमें क्या होगा, लुब्रिकेंट होंगे सरफेस के बीच में। पहला है हमारा विस्कस फ्रिक्शन। तो अगर हम बात करें विस्कस फ्रिक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि जो लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेंट कह लीजिए या आप ऑयल कह लीजिए, वो क्या होता है, दोनों जो मेटिंग सरफेस होती हैं उनके बीच में इसकी लुब्रिकेंट की एक मोटी परत होती है।
मोटी परत या जो थिकनेस होती है लेयर की वो ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार जो कॉन्टैक्टेड सरफेसेस होती हैं उसके बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि बीच में क्या होता है आपका लुब्रिकेंट फिल्म होती है, तो वो फिल्म क्या करती है सरफेसेस को लॉक नहीं होने देती है। एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होता है, जो वो पीक्स और वैलीज होते हैं उनको एक दूसरे के अगेंस्ट में फुली कांटेक्ट में आने नहीं देती है, लॉक नहीं होने देती है। वहां पे क्या होता है आपका लिक्विड या लुब्रिकेंट आपका भर जाता है, और जो मोटी फिल्म लुब्रिकेंट की होती है वो सरफेस को प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं आने देती है। तो किसी प्रकार का जो है आपका फ्रिक्शन जो है वो नहीं होता है। जो फ्रिक्शन आपको सरफेस के बीच में देखने को मिलता है, इट जस्ट ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ दैट लुब्रिकेंट, है ना। देखिए अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, तो अगर दो आपकी सॉलिड सरफेस है, उन सॉलिड सरफेसेस के बीच में अगर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है या वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो वो नॉन विस्कस या अनलुब्रिकेटेड सरफेस फ्रिक्शन वहां पे होगा। मतलब कि वहां पे लुब्रिकेशन नहीं है, कंप्लीटली लुब्रिकेशन नहीं है, तो वहां पे अनलुब्रिकेटेड फ्रिक्शन फोर्स काम करेगी। जबकि अगर बात करें कि अगर सरफेस के बीच में लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेंट है, तो वहां पे क्या होगा कि जो आपका लुब्रिकेंट होगा उस लुब्रिकेंट के भी लेयर्स के बीच में एक तरीके से जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, जो फ्लूइड के बीच में लगता है, वो फ्रिक्शन कार्य करेगा। और एक लेयर क्या करेगी, दूसरे लेयर के मूवमेंट को क्या करेगी, स्लो डाउन करेगी, अपोज करेगी, है ना। जैसे कि हमारा बात करते हैं सॉलिड बॉडी की, तो एक बॉडी अगर दूसरे के ऊपर रखी जाती है तो ऊपर वाली बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी के मोशन का अपोज करेगी। सेम तरीके से अगर हम बात करेंगे फ्लूइड की, तो फ्लूइड में क्या होता है कि जो नीचे वाली लेयर होती है वो ऊपर वाली लेयर को, देखिए अगर हम लुब्रिकेटिंग फ्रिक्शन की बात करें यानी कि विस्कस फ्रिक्शन की, तो विस्कस या नॉन विस्कस दोनों के केस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो लुब्रिकेटिंग फिल्म है ये वाली आपको दिख रही होगी, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब थिकनेस ज़्यादा होती है तो हमारा विस्कोसिटी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम बात करेंगे कि अगर लेयर की थिकनेस अधिक है, उस केस में क्या होगा कि सरफेस के बीच में एक विस्कस फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, और इस तरीके से जो आपका फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन केस ऑफ विस्कस फ्रिक्शन क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ये सरफेसेस कहीं से भी क्लोज कांटेक्ट में नहीं है ना, मतलब कि एक दूसरे के अगेंस्ट लॉक नहीं है। अगर वही बात करें हम, अब देखिए अगर हम विस्कस फोर्स की बात करें या विस्कस फ्रिक्शन की बात करें, तो यहाँ पे ये जो आपकी हो गई लेयर हो गई लुब्रिकेटिंग लेयर, ठीक है, ये आपकी ऊपरी सरफेस हो गई और ये नीचे की सरफेस हो गई। अब देखिए कि अगर आप ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगाते हैं मूव करने के लिए, तो बीच में ये लेयर क्या है, ये इस ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर को कांटेक्ट में क्लोज कांटेक्ट में नहीं आने दे रही है। इससे क्या होगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा आएगा आपका, वो जस्ट बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स आएगा या बहुत माइन्यूट कांटेक्ट ऑफ द सरफेस। इसके अलावा कोई भी फ्रिक्शन फोर्स आपका मेजर फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं करेगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इन केस ऑफ लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन अगर हम विस्कस फ्रिक्शन की बात करेंगे तो वहां पे आपका जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो काफ़ी कम रहेगी। अब जैसे कि अगर आप बात करें ऐसे फ्रिक्शन का एग्जांपल की बात करें, तो आप देखते होंगे जो बियरिंग आपकी होती है, बॉल बियरिंग, है ना, तो उन बेयरिंग्स में क्या होता है, लुब्रिकेशन उनके बीच में होता है। तो
जिससे क्या होता है कि आपका स्मूथली मूवमेंट होता है फिक्स एंड के अबाउट, है ना। और आपका जो मूविंग पार्ट है आसानी से रोटेट करता है। अब ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ये जो नीचे वाली सरफेस है और जो ऊपर वाली सरफेस है, तो ऊपर वाली सरफेस चूंकि ऊपर वाले ये आपका जो सरफेस है इसके कांटेक्ट में इसके जस्ट नीचे वाली लेयर फ्लूइड की है, तो जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा, ये नीचे जस्ट जो नीचे लेयर है फ्लूइड की, ये भी आगे की तरफ मूव करने का प्रयास करेगी। तो इसका अपोज कौन सी करेगी? जस्ट इसके नीचे वाली सरफेस अपोज करेगी और क्या करेगी? इसकी स्पीड को स्लो डाउन करने का प्रयास करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नीचे वाली सरफेस है इसके जो ऊपर फ्लूइड लेयर है, ये नीचे वाली सरफेस क्या करेगी? इस पे एक तरीके से इससे कांटेक्ट में रहेगी नीचे वाली फ्लूइड लेयर से। उसके ऊपर वाली सरफेस इस वाली फ्लूइड लेयर से कांटेक्ट में रहेगी। तो चूंकि ये क्या है, नीचे वाली सरफेस से जो है वो अटैच्ड है, यानी कि उस पर आपको विस्कोसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, या फ्रिक्शन कर लीजिए, नीचे वाली सरफेस से इसको ज़्यादा मिलेगी, तो ये क्या करेगी? इसके मूवमेंट को कंप्लीटली अपोज करेगी। यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी और ये वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे क्या करेगी? ये भी विस्कस फोर्स लगाएगी। लेकिन इसके और जो ये आपका सॉलिड सरफेस है उसके बीच में जो विस्कस फोर्स है या फ्रिक्शन फोर्स है, उससे क्या होगी? इसकी वैल्यू अधिक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड सरफेस है, ये ज़्यादा फ्रिक्शन लगाएगी रेदर देन लिक्विड सरफेस, तो इसलिए यहाँ पे विस्कोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कम होगी और जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो फिर और कम होती जाएगी। फिर जो ऊपर वाली सरफेस है उसकी और जस्ट नीचे वाले सरफेस की भी क्या नाम है, इसी तरीके से विस्कोसिटी ऊपर वाले के कांटेक्ट में होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी? फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए जो ऊपर वाली लेयर होगी वो सबसे तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगी। उसके बाद उससे नीचे वाली लेयर आगे की तरफ बढ़ेगी और सबसे कम स्पीड में ये वाली लेयर आगे बढ़ेगी। फिर उससे भी कम स्पीड में आपका नीचे वाला ये जो फिक्स आपका सॉलिड सरफेस है वो मूव करेगा, है ना। तो अगर हम बात करें कि जितनी ही आपकी थिक लेयर होगी दोनों कॉन्टैक्टेड सरफेस के बीच में, उतना ही आपका कम फोर्स जो है, कम विस्कस फोर्स कार्य करेगा। अब अगर नेक्स्ट बात करें लुब्रिकेटेड सरफेस में ही, तो ये तो हम विस्कस देख रहे थे। दूसरा है हमारा बाउंड्री लेयर या बाउंड्री फ्रिक्शन या नॉन विस्कस। तो इस केस में क्या होगा कि आपके बीच में जो सरफेसेस होंगी उसके बीच में तो लुब्रिकेशन होगा, बट जो लुब्रिकेशन होगा सॉरी जो लुब्रिकेशन होगा उसकी लेयर काफ़ी पतली होगी, जिससे क्या होगा कि जो ऑयल फिल्म होगी आपकी लुब्रिकेंट फिल्म, वो पतली होने की वजह से क्या होगा कि जो आपकी रफ सरफेसेस हैं वो क्या करेंगी? इस फिल्म को क्या करती हैं? अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि नॉन विस्कस या आप कह लीजिए बाउंड्री फ्रिक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, विच इज ग्रेटर देन विस्कस फ्रिक्शन। ये इसकी वैल्यू जो होगी वो आपके विस्कस फ्रिक्शन से अधिक होगी, लेकिन जो हमारा क्या नाम है अनलुब्रिकेटेड फ्रिक्शन है उससे कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फिल्म होती है काफ़ी पतली होती है ऑयल की, और वो ऑयल क्या करता है, वो ऑयल उस सरफेस के द्वारा, जो आपकी रफ सरफेसेस होती हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब होने की वजह से कुछ आपको जो यहाँ पे सरफेस के बीच में फ्रिक्शन अधिक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें अनलुब्रिकेटेड या अस्नेहित सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड फ्रिक्शन, है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका दोनों जो मेटिंग सरफेस होती हैं जिनके बीच में मूवमेंट होना होता है या जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, इन सरफेस के बीच में आपको किसी भी प्रकार का लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा। ये सरफेसेस जो दोनों सॉलिड सरफेस होंगी ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं और यहाँ पे आपको
जो है अधिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो जब जो मेटिंग सरफेस है वो दोनों जो है वो आपकी सॉलिड सरफेसेस हो, यानी कि कोई भी लुब्रिकेंट वगैरह इस्तेमाल ना किया जाता है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन काम करता है उसको हम ठोस फ्रिक्शन या कह लीजिए ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसलिए इसको ड्राई फ्रिक्शन या सॉलिड फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब अगर ड्राई फ्रिक्शन या सॉलिड फ्रिक्शन की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बेसिकली मेन जो आपको टॉपिक्स कवर करना है या पढ़ना है, ठीक है। अब अगर बात करें ड्राई फ्रिक्शन की तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रोलिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हिंदी में बात करिए तो लुंठन घर्षण और सर्पी घर्षण कहते हैं, तो बेटर कि आप इंग्लिश में ही इसको समझें, ठीक है, क्योंकि हिंदी का कोई मतलब नहीं है। तो हम बात करेंगे पहले रोलिंग की। तो अगर बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की, तो अगर कोई भी आपकी बॉडी है जो किसी सरफेस के अगेंस्ट रोटेट करते हुए आगे बढ़ रही है, मतलब कि रोल करते हुए आगे बढ़ रही है एक तरीके से, उस सरफेस के अलॉन्ग क्या है आपकी जो बॉडी है वो लुढ़क रही है ना, रोल कर रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो वहां पे फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसका प्राइम एग्जांपल आप देख लीजिए अपने व्हीकल्स में। व्हीकल क्या करती हैं, रोल करते हुए लुढ़कते हुए तो सरफेस के सतह के अगेंस्ट में आगे बढ़ती हैं। हाँ, उस केस में क्या होता है, जब आप अचानक से ब्रेक मारते हैं, आपकी ब्रेक चौक हो जाती है, जाम हो जाती है, ब्रेक अप्लाई होता है, तो जो आपका व्हील है वो लॉक हो जाता है, मूव नहीं करता है। उस केस में क्या हो जाता है हमारा, वहां पे क्या होता है, आप कह लीजिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, वहां पे क्या होगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट है वो लुढ़कता हुआ आगे बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। अगर हम चलते हैं, अब अगर बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सरफेस के अगेंस्ट में कोई आदमी सरकता या फिसलता हुआ आगे बढ़ता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट सरकता या फिसलता हुआ आगे बढ़ता है, तो इस प्रकार जो उस बॉडी पे फ्रिक्शन सरफेस द्वारा लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या आप हिंदी में कहे तो सर्फी घर्षण कहते हैं। जैसे कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रोल तो लुढ़क तो रहे नहीं है, है ना, आप पैदल चल रहे हैं, या बहुत से बच्चे स्कीट करते हैं, है ना, आपकी जो फ्लैट सरफेस होती है, तो इस प्रकार की जो फ्रिक्शन जनरेट होती है इस मूवमेंट के अगेंस्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। दो सरफेसेस के जो कांटेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एक के ऊपर फोर्स लगा के उसको दूसरे के अगेंस्ट में मूव कराना। अब स्लाइडिंग में भी फोर्स लगाते हैं, रोलिंग में भी कराते हैं, लेकिन आपका रोलिंग में आप देख रहे होंगे एक पॉइंट कांटेक्ट होगा। अगर हम बात करें रोलिंग फ्रिक्शन की, तो वहां पे क्या होता है, जो सरफेस होती है और आपका जो बॉडी होती है उसके बीच में या तो पॉइंट या लाइन कांटेक्ट होता है ना। कैसे, अगर बात करें तो या तो जो बॉडी मूव करे, जैसे कि आपकी बॉल है, तो बॉल किसी एक ही पॉइंट पे आपकी सरफेस को टच करती है ना। आपकी अगर बात करें व्हीकल है, तो व्हीकल का टायर क्या करता है, चौड़ा होता है, तो वो एक लाइन के अलोंग जो है सरफेस को टच करता है, एक ही लाइन पे जो है सरफेस को टच किया रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो रोलिंग सरफेस होता है वहां पे आपका सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट होता है। जबकि अगर बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका कांटेक्ट जो होता है वो वेज कांटेक्ट होता है, मतलब कि कंप्लीट बॉडी का एक जो आपका सिरा होता है, एक एंड होता है, वो सरफेस के दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में रहता है।
तो जितना अधिक कांटेक्ट होगा वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन वैल्यू जो है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वो अधिक होती है, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अधिक होती है। जबकि अगर बात करें रोलिंग के केस में, तो चूंकि कांटेक्ट बहुत ही कम होता है, पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट होता है, तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन की वैल्यू कम मिलती है। तो कंक्लूसिवली अगर हम बात करें तो आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है विच इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट केस में, यहाँ पे क्या है कि आपका जो बॉडी वेट है, दैट मीन्स मान लीजिए इस बॉडी का वेट W है, ये नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगी इसके अगेंस्ट में ऊपर की तरफ कार्य करेगी, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ बॉडी, है ना। उसके अलावा यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना। जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क करेगा। अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो बॉडी रेस्ट पोजीशन में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो ऐसी ये केस जो होगा हमारा क्या होगा, स्टैटिक केस होगा, मतलब कि देयर इज नो मोशन बिटवीन द सरफेसेस, है ना। यहाँ पे आपको सरफेस के बीच में कोई भी मोशन देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए, अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट केस की, तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि सेम बॉडी वेट नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और नॉर्मल फोर्स जो है ऊपर की तरफ कार्य कर रही है। अब अगर हम फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगाया, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस वेज को नीचे वाली वेज के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ राइट डायरेक्शन में मूव कराने का प्रयास करेगा। तो जब ऊपर की तरफ मूव कराने का प्रयास करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो मोशन होगा बॉडी का उसके अगेंस्ट में कार्य करेगी। अगर हम बात करें नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की, तो जनरली क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स से तो आपकी ग्रेविटी फोर्स बैलेंस है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमें जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस दिख रही हैं। लेकिन अगर बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F, उसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से अधिक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। अगर यही अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो आपका जनरेटेड फ्रिक्शन फोर्स है उससे कम होता, तो आपका जो बॉडी है वो मूव ना करके रेस्ट पोजीशन में रहती। अगर तीसरे केस की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, कि जो आपका नॉर्मल फोर्स है, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट कांटेक्ट है। तो एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो वहां पे जो आपका फोर्स होगा, बॉडी वेट होगा, वो क्या होगा कि हमेशा ही ये जो आपकी सरफेस है और आपका जो ये आपकी बॉल है मान लीजिए, तो ये सरफेस और बॉल के जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वहां से पास होता हुआ नीचे की तरफ हम जो है बॉडी वेट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो जहां पे इन दोनों का कांटेक्ट पॉइंट होगा वहीं से इस बॉल का बॉडी वेट जो है नीचे की तरफ कार्य करेगा। ठीक है,
और इस बॉडी वेट के अगेंस्ट में एक हमारा नॉर्मल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिए जब फोर्स लगाएंगे आप, तो चूंकि ये कर्व सरफेस है ना, ये कर्व सरफेस है ना कि फ्लैट सरफेस, तो क्या होगा कि ये फोर्स क्या करेगी, इस बॉडी को रोटेट कराने का प्रयास करेगी अबाउट इट एक्सिस, है ना। तो रोटेट जैसे जैसे आपका बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, किस केस में, जब आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू जो अप्लाइड फोर्स है उससे कम होगी, और अगर आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी। तो मतलब कि अगर हम बात करें रोलिंग फ्रिक्शन की, तो यहाँ पे बॉडी क्या करती है, रोटेशनल मोशन करती है ना, दूसरे सरफेस के अगेंस्ट में। जबकि अगर हम बात करें रोलिंग सरफेस के अलावा, रोलिंग मोशन के अलावा दूसरा जो है आपका स्ट्रेट लाइन या कर्वी रेक्टिलिनियर मोशन, तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी रोटेट ना करते हुए स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस तरीके से देखिए आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी कि रोलिंग फ्रिक्शन और आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है, और किस तरीके से हम जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनको डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हमारा फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन है जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है, और कौन सा हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जैसा कि अभी जस्ट हमने देखा था, मैंने आपको बताया भी था लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो अगर हम बात करें लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो मानिए कोई देखिए लिमिटिंग का नहीं कटेगा, हेलो।
हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब। देखिए हम बात कर रहे थे लिमिटिंग फ्रिक्शन की, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, एक रफ सरफेस है मान लीजिए, ठीक है, इस पे एक कोई बॉडी रखी हुई, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब अगर बात करें फ्री बॉडी डायग्राम की, तो यहाँ पे ये जो बॉडी है इसका वेट W नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। उसके अलावा इस पे लगने वाला एक रिएक्शन फोर्स है जो कि इक्वल अमाउंट में, और W के अपोजिट R की डायरेक्शन में, जो ऊपर की डायरेक्शन में R लग रहा है। उसके अलावा हमने एक फोर्स P लगाया हुआ है जो कि इस बॉडी को, इस वेज को राइट डायरेक्शन में मूव कराने का प्रयास कर रहा है। और ये जो फोर्स हमने लगाया हुआ है ये क्या है, हमारा जिस सरफेस पे स्लाइड करना है या जिस सरफेस के अगेंस्ट में ये बॉडी रखी हुई है उसके पैरेलल है। अब देखिए जो आपका वेट है उसको क्या करेगा, ये जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या करेगा, निगलेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड में है और जस्ट डायरेक्शन जो है एक दूसरे की, ये बॉडी वेट को जो आपका रिएक्शन फोर्स है वो न्यूट्रलाइज करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें लोड P की, तो अगर जो है हमको इस बॉडी का मूवमेंट नहीं चाहिए तो यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स चाहिए जो कि P के ही बराबर हो, P से ज़्यादा हो मैग्नीट्यूड में, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो, उसके अपोजिट हो। तो अगर हम देखते हैं कि बहुत सी, आप घर में भी देखते होंगे, बहुत से आपके, जब मान लीजिए आप गाड़ी ढकेलते हैं, आपके घर में एक फोर व्हीलर है, अचानक से वो खराब हो गई और आप उसको ढकेल रहे हैं। आपको आपके घर में किसी ने बोला कि ठीक है तुम ढकेलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप ट्राई कर रहे हैं अकेले, आप ढकेल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ढकेल पा रहे हैं? क्योंकि आप फोर्स तो लगा रहे हैं, ये पी लोड आप तो उस कार पे लगा रहे हैं, लेकिन जो लोड है जो आप लगा रहे हैं वो उस जो कार है उस पर लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है। तो जब कम है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, फ्रिक्शन के डायरेक्शन में लगेगी, और जो P है हमारा वो कार को मूव नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो अब अगर बात करें, अगर हम धीरे धीरे P का मान बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे हम P का मान बढ़ाएंगे तो उस तरीके से क्या होगा कि हमारी फ्रिक्शन जो है ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू म्यू एन है, ठीक है, ये मान लीजिए टोटल जो है 10 न्यूटन है, आप यहाँ पे 3 न्यूटन लगा रहे हैं, तो जब 3 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे 3 न्यूटन की ही फ्रिक्शन फोर्स आपको अपोज करेगी, ये नहीं कि आपकी 10 न्यूटन की फोर्स अपोज करेगी। जो 10 न्यूटन की फोर्स होगी वो क्या होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। जो म्यूएन होती है वो क्या होती है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। ये मैक्सिमम इतनी फ्रिक्शन इस सरफेस पे किसी इस बॉडी के अगेंस्ट में ये सरफेस क्या है, इतनी फ्रिक्शन लगा सकती है। तो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की होगी। लेकिन अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी उतनी ही जनरेट होगी जितनी आप वैल्यू फोर्स की लगा रहे हैं। और जब आप एक्सीड कर जाएंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को, तो आपका जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू जब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आपकी फोर्स है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो हमने जो फ्रिक्शन का था, फ्रिक्शन की इंट्रोडक्शनरी पार्ट और क्लासिफिकेशन जो है डिटेल्ड में डिस्कस कर लिया है। और उसके अलावा अगर बात करें तो
तो इस तरीके से जो है इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखा। उसके अलावा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो लुब्रिकेटेड और अनलुब्रिकेटेड, या लुब्रिकेटेड में देखें तो आपका विस्कस और नॉन विस्कस, अनलुब्रिकेटेड में रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एक बेसिक आइडिया जो है वो हमने देखा कि कहाँ पे आपका रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, कहाँ पे आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।